few insurance people together. Then we went separate ways. So, like I got to meet your promoters also number of times. So definitely we have an old interaction. Now today out here you have done an extensive work. What I can see is कि आपने बहुत ज़्यादा work करा है, and definitely you have also taken pain कि आपने जो भी करा है, you have given invited people, you have like wherever you have been invited, you have went ahead and told a lot. So that is there on your pages, and number of us have appreciated your efforts. So we are really thankful कि आप यहाँ आए हैं. We have a separate entrepreneurship and startup cell at our college. We are also working on innovation, and we are working on character and leadership cell, that is we have separate. So we are also working on things like past 2 years have been for everybody, it has been a challenge, especially in education sector past 2 years, because education has been kept inside. बाकी सब चल रहा है, स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं, and somehow like, but we cannot complain. This is an entire world phenomena. We have to come forward and perhaps get together and work. So I appreciate कि आपने समय निकाला, आप यहाँ पे आए. I'm sure कि आप जो बताएंगे उससे हम लोग को बहुत benefit होगा. So thank you sir. Please continue with your session. Feel free. आप जो भी बताएंगे उससे हम लोग का, we have number of students and staff members जिनको guidance की जरूरत है, and आप अगर practical जो भी बता रहे हैं, that will be very much beneficial for us. Thank you sir. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind invitation. And first, I would like to thank the Vision Group of Institution, and especially Professor Mohammad Rehanji, the convener of this program, and the Dean Academics for inviting me, and the entire management of the Institute. And very good morning to all of my students and faculties also. The topic which has been selected is a very pertinent topic. Design thinking for innovation management of a startup. Really, it's a very pertinent topic, because nowadays when so many things are happening all around the world, in this COVID era, we need to think differently. And how we have to think in this direction. So no doubt, startup culture is nowadays very much famous, very popular. Everybody is talking of the startup culture. But I would like to share one data with you, that in India, nearly 90% of a startup get failed within 5 years. And up to 10 years, around 98% get failed. So why such kind of things are happening, in spite of all the efforts being provided to develop the ecosystem on the triple helix model, where the industry, academia, and government all are trying to work together. So what I felt, I spent more than 2 decades in industry, and now I'm working as a professor in this field. We are not having the innovative products. We just have the Me Too kind of products. Others are making some products, we are copying that, and we are reintroducing that, and we just focus on the commercial dimensions only, how much discount we can offer, how much schemes we can offer. But unless the innovation is going to solve the problem of a customer, we will not get success. So first we should understand why the innovation is. As we all know, we are in the era of VUCA. VUCA means V for volatility, U for uncertainty, C for complexity, A for ambiguity. In such a situation, everybody is trying to offer some product to the customers. And how you are different than others, this is one part. And on which basis you will be different, that is second part. As Professor Vishal Pandey was just speaking regarding, he was in the insurance sector. How one insurance sector is different than others, how one insurance sector is successful, how one is not successful.
All of a sudden, we have seen so many boom in the insurance sector, but then boom get bust because you can imitate the product, but you cannot imitate the services, because services part are basically dependent upon the human being. Professor Pandey was explaining that he was having old association in my institute. This was his personal relationship, which he has converted into a business through his customer relationship management. So there the service innovation is required. So you need to understand that situations are improving. I will share some good data also. In 2014, World Bank every year announced ease of doing business index. I'm not saying anything political, so please don't take it in that way. It's just a professional data. You should interpret because we are a student of management. तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में रखूं और थोड़ा मिक्स करके चलूं। बिल्कुल सही आपका कहना, जिसमें बच्चों को समझ में आ सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पैमाना ये होता है कि किसी भी देश में जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो वो कितनी आसानी से वो बिजनेस स्टैब्लिश या कितनी कम दुश्वारियां हों बिजनेस को स्टैब्लिश करने, कितनी कम मुश्किलों। तो हमारी जो कंडीशन थी इन 2014, इट वाज 142 आउट ऑफ 190, यानी 190 देशों में हमारी स्थिति थी 142, यानी 141 देश ऐसे थे जो भारतवर्ष से ज्यादा बेहतरीन थे इन्वेस्टमेंट के एंगल से बिजनेस को शुरू करने। ये स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो प्रेजेंट डेटा 2020 तक का आया, अभी 21 का आना बाकी है, हमारी कंडीशन 142 से इंप्रूव होकर 63 पे आई। तो ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने पिछले 5-6 सालों में काफी इंप्रूवमेंट की, 6-7 सालों में। और इसमें हमारे जो हमेशा ट्रिपल हेलिक्स मॉडल की बात करता हूँ कि एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, अगर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, इनोवेशन को प्रमोट करना है, तो अभी पांडे सर बहुत अच्छी बात बताते हैं कि हमारे यहाँ इंक्यूबेशन, आपका इंक्यूबेशन सेल भी है, इनोवेशन सेल भी है, तो ये एकेडमिया का कंट्रीब्यूशन है। गवर्नमेंट बहुत से स्कीमें चला रही हैं, वो उसका कंट्रीब्यूशन है, और इंडस्ट्री का अपना कंट्रीब्यूशन। ये जब तक तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे, इनोवेशन को प्रमोट नहीं किया सकता, स्टार्टअप को नहीं कर सकता। लेकिन हमें इसमें खुश नहीं होना है कि 63 हमारी पोजीशन इंप्रूव हो गई। भारतवर्ष एक विशाल देश है, अपार संभावनाओं का देश है। हमारा टैलेंट, दुखद बात है कि हम वही, हमारा ही टैलेंट भारतीय जाके अमेरिका में क्या कुछ कर ले जाते हैं, विदेशों में क्या कुछ कर ले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है क्योंकि हम अपने टैलेंट को इतना मानते नहीं, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। आप सभी जानते हैं, सब कुछ ओपन फैक्ट हो, चाहे नेपोटिज्म की बात हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात हो, तमाम, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो हमारा विषय है। मेरे विचार से भारतवर्ष को कम से कम टॉप 5 कंट्रीज में होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वी आर हैविंग एम्पल रिसोर्सेज, वी आर हैविंग टैलेंटेड पीपल लाइक यू, जो जाते हैं बाहर के देशों में जाके सर्व करते हैं। आप नासा में जाइए, आप सिलिकॉन वैली में जाइए, मैक्सिमम इंडियंस मिलेंगे आप। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे हमें काम करना होगा, बिकॉज वी नीड टू डिफरेंशिएट। इनोवेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी नीड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स। Remember, you don't buy a product, you don't buy a service, you actually buy a solution. A startup don't sell a product, they don't sell a service, they sell a solution. आप कोई उत्पाद या सेवा नहीं खरीदते, आप एक समाधान खरीदते। मैं आगे आऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे। आपकी हर चीज जो आप खरीदते हैं, आप उसी को तरजीह देते हैं जो आपकी किसी समस्या का समाधान करे। और अगर आप इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को भूल करके जैसा किसी ने बनाया वैसे ठीक नकल करके हम भी बना देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट चल जाएगा, तो ये हमारी बड़ी। देखिए, इनोवेशन किसी भी रूप में हो सकता है। दैट कैन बी अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन, या प्रोडक्शन में हम कुछ नया मेथड यूज करने, वो हो सकता है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बदलाव ला दें, वो हो सकता है। लेकिन हर जगह जो भी वट एवर इनोवेशन वी आर डूइंग, वी शुड ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। मैं अभी रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ।
आप सबने सुना होगा कि एलन मस्क की टेस्ला कार, जो कि इलेक्ट्रिक कार, बड़ी मशहूर है और एलन मस्क काफी मशहूर हैं पूरी दुनिया में। ही इज वन ऑफ द पर्सन हु हैज डन सो मेनी इनोवेशंस, जिसे हम डिसरप्टिव इनोवेशन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक कार जो इनकी सक्सेसफुल हुई, उसके पीछे क्या था? एक रीजन था कि फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, अवेलेबिलिटी सीमित है, सो वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट व्हिच कैन सेव द इलेक्ट्रिसिटी। अब ये एक बात थी। रिसेंटली दे हैव अनाउंस्ड दैट दे विल कम इन इंडिया। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, टाटा ग्रुप ने इमीडिएटली अनाउंसमेंट किया कि हम भी अब इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, और चूंकि टेस्ला की कार थोड़ी महंगी है, 24-25 लाख के नीचे कोई कार नहीं है, तो टाटा ने कहा कि हम 12 लाख तक की कार। टाटा इज एक्सपर्ट इन दैट। अब इनोवेशन कहाँ पे आ? इनोवेशन इलेक्ट्रिक कार बनाने में नहीं आ रहा, वो भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। इनोवेशन कहाँ पे आ रहा? अब यहाँ पे सर्विस इनोवेशन की बात, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द इनोवेशन। मैं आपको बहुत थ्योरेटिकल डिफिनीशंस वगैरह में नहीं लिखे जा रहा हूँ, वो आपके टीचर्स आपको बताते हैं। मैं भी एक टीचर हूँ, वो चीज़ अलग। हम लोग यहाँ थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, सो दैट हम समझ सकते हैं। आपको मालूम है, अभी पेट्रोल भरवाते होंगे अपनी कार में, अपनी बाइक में, इट हार्डली टेक्स 2-3-4 मिनट्स, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप अपनी बैटरी को अगर रिचार्ज कराने जाएंगे, इलेक्ट्रिक बैटरी को, तो इट में टेक 20-30 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे कंज्यूमर को एक प्रॉब्लम, इनकन्वीनियंस, 20 से 25 मिनट खड़े होकर रिचार्ज कराना, और उसमें एक लंबी, कितनी लंबी क्यू लगेगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। टाटा हैज रियलाइज्ड that there is a great potential in opening of the electric charging stations। तो एक तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, अभी जो 40,000 उन्होंने बोला होगा, अभी देखिए क्या करते हैं, और कोविड की वजह से सिस्टम थोड़ी डिले होगी। और ये दूसरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने इनोवेशन पे क्या काम करना शुरू कर दिया अभी से, दैट अब आपको रिचार्ज नहीं करना है। जैसे हमारा गैस का सिलेंडर हर घर में होता है, हमें जब जरूरत होती है तो हमारा एक जो गैस का एजेंसी का आदमी आता है, एक दूसरा सिलेंडर हमको दे देता है, हमारा पुराना सिलेंडर लेके चला जाता है। तो ऑन द सेम वे दे विल मेक द इलेक्ट्रिक बैटरीज, और वो देखेंगे कि आपका कितना परसेंट का कंजम्पशन होता है। मान के चलिए कि आपने 90% कंज्यूम किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको प्राइस फिक्स करके और आपको फ्रेश पूरी एक बैटरी दे देंगे, आपको रिप्लेस कर देंगे। इट विल हार्डली टेक 5। तो आपके आधे घंटे का समय बचा के हमने वही 5 मिनट कर दिया, जो 4-5 मिनट आपको वैसे भी लगते हैं प्रोसेस भरने के प्रोसेस में। क्यू का जो लाइन लगेगा वो एक अलग है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि प्रोडक्ट को कॉपी करना आसान है। मान लीजिए आपने इनोवेट किया, तो नो, इंडिया में तो बड़ा बहुत तेजी के साथ चीजें इमिटेट हो जाती हैं। तो प्रोडक्ट को तो हम कॉपी कर लेते हैं, उसमें हम लोग काफी महारत हासिल, लेकिन सर्विस को कैसे करें? एक व्यक्ति 5 मिनट में आपका काम कर रहा है, एक व्यक्ति 15 मिनट में काम कर रहा है, और आपको मालूम बड़े बड़े ब्रांड they have failed just because they have not been able to deliver the service। आप एक कंप्लेन लेके जाते हैं, अगर आपकी सर्विस नहीं ठीक मिलती है तो आप तुरंत का तुरंत कह देते हैं नहीं सर, चाहे लाख अच्छा ब्रांड हो और हमें सर्विस नहीं मिली। तो सर्विस इनोवेशन पे वर्क करने की आवश्यकता। कई तरह के इनोवेशन होते हैं दैट, क्योंकि जो है ना, एक बेसिस होती है, कहीं ना कहीं जो इन्वेंशन होते हैं, जब एकदम नई चीज बनती है वहां भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइशें होती है, वहां भी इनोवेशन होता है। इफ यू एक्सटेंड any product line, service line, or you synthesize any new thing, or certain time, मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, बिजनेस मॉडल। तो अगर आप पूरे डिजाइनिंग थिंकिंग की बात करते हैं तो बिजनेस मॉडल इनोवेशन का बड़ा रोल है। अभी जब से ई कॉमर्स इमर्ज या ई प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हुए, मैं आपको पिछले 22-23 साल से जब से इसकी इमरजेंस नहीं, उसकी स्टोरी बताऊंगा। उन्होंने 3C मॉडल पे था, चॉइस, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजन वगैरह पे करते हो, बहुत कॉमन है। अब आप देखिए कैसे 3C मॉडल इन्वॉल्व होता है।
मान के चलिए कि हम अमेजन फ्लिपकार्ट की जगह दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, हो सकता है उस दुकान में सामान ना मिले, फिर अगले दुकान में जाए वहां भी वो सामान ना मिले, तीसरे दुकान में जाए वहां भी वो सामान ना मिले। हम जैसे बनारस में रहते हैं, बनारस उतना बड़ा दिल्ली की तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, लिमिटेड शॉप्स हैं, और उनकी भी एक कैपेसिटी है। तो जो अवेलेबल है तो हम वो सामान खरीद। लेकिन इस तरह के ई प्लेटफॉर्म्स पे आपके पास चॉइस, इतने तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, इतने रेंज के होते हैं कि आप जो भी आपकी इच्छा करे आप ले सकते। एक प्रॉब्लम ये जो सॉर्ट आउट करता है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ परचेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट तो एक बात, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्वियसली लो होता है। क्यों? क्योंकि मिडल मैन कम होते हैं इसमें, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, C&F, ये सब जो चैनल्स होते हैं वो हटा के कंपनी डायरेक्ट माल सप्लाई करती है आपको। तो अगर वो 100 रुपए की आपको 80 रुपए में दे रही है, वो तो नॉर्मली यूजुअल में 50 रुपए में देती थी, वो बढ़ते 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 100 रुपए में मार्केट बिकता था। अब उसने अगर आपको 20 रुपया छोड़ दिया तो भी वो 30 रुपया कंपनी कमा रही है बैठ। तो विन विन पोजीशन है दोनों के लिए। कॉस्ट ऑफ परचेज में आप सब सामान खरीदने जाते हैं तो आपका फ्यूल कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व होता है, आपका टाइम भी तो इन्वॉल्व होता है। ये भी एक कॉस्ट है जो आप सेव करते हैं जब आप ई कॉमर्स मोड में। तो आप सुनते होंगे कि दुकानें तो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन ई कॉमर्स मोड पे सामान लोग मंगा रहे हैं। कहीं कोई कमी नहीं है, इवन कोविड में भी कोई समस्या नहीं है, जो लोग सामान मंगा रहे हैं आ रही है। एंड थर्ड इज योर कन्वीनियंस। नाउ द गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। आपके घर पे सामान वो पहुंचा के जा रहा है और तब आपसे पैसा ले रहा है। अब ये 3C मॉडल यूज करके जो जितने भी नए बिजनेस मॉडल्स बने हैं, मैं भी आपसे उस पर डिस्कस करूंगा। ऑल द सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जितने भी आप उठा के देखें, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व, आपकी प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन होती है, जिस समय में टेस्ला का एग्जाम्पल लिया। और ये मिक्स भी होता है, ऐसा नहीं कि कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है कि ये होगा तो दूसरा नहीं होगा, मिक्स होगा। उसके अदर रीजंस हैं, क्योंकि वो एक जिस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट लेके आए थे, दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस ऑफ द लोअर मिडिल क्लास फैमिली। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ कार जो है वो एक स्टेटस सिंबल है, इसे हम माने या ना माने, लेकिन सच्चाई है कि जब हमारे घर पे कार आती है तो हमको लगता है कि हम थोड़ा सा एक अलग स्टेटस पे आ गए। ये एक साइकोलॉजी, कॉमन सेंस। वो एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए। उनको लगा कि 50,000 की 60,000 की मोटरसाइकिल वाला आदमी आके 1 लाख की कार ले लेगा, वो हुआ नहीं। वो रॉयल इनफील्ड की 1.5 लाख की मोटरसाइकिल लेने में हम स्टेटस सिंबल महसूस अपने को फील करते हैं, वो आया नहीं, वो उधर चला गया। और जो कार वाला सेगमेंट था, उनको लगा कि भाई ये मारुति का जो लोएस्ट वर्जन है 3-3.5 लाख वाला, वो शायद आ जाएगा, वो आया नहीं, वो और हायर वर्जन पे चला गया, वहां पर रुक गया। बट सो फार एज इनोवेशन इज कंसर्न, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अभी इनोवेशन की सिचुएशन पहले से इंप्रूव हुई है। एंड आउट ऑफ 100 कंट्रीज अभी हमारी पोजीशन 48 चल रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि जो ये नापा जाता है, इसका जो मेजरमेंट है, तो हमने कितनी पेटेंट फाइल की इस पे नापा जाता है। अब पेटेंट फाइलिंग का प्रोसीजर बड़ा कॉमन है, आपने कोई डिजाइन बनाई, पेटेंट ऑफिस में फाइल कर दिया, वो अगर सिमिलर नहीं है आपको पेटेंट अलॉट हो जाता है। क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी पेटेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन द मार्केट। इट शुड बी कॉमर्शियली वायबल। अगर वो कॉमर्शियली वायबल नहीं है तो उस इनोवेशन का कोई मतलब नहीं, आप लेबोरेटरी बना के रखी रही है। We are publishing so many research papers, we academicians know it very well। और बड़े गर्व से हम कहते हैं साहब एबीडीसी में हमारा छपा है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, स्कोपस में छपा है किस काम का वो? क्या वो हमारे समाज का, हमारे इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा है हमारे रिसर्च पेपर? अगर नहीं कर रहा है तो वो इनोवेशन किसी काम का। मैं थोड़ा हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, आई एम डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ इसको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से आया हुआ आदमी हूँ, मैंने फेस किया हुआ प्रॉब्लम। पांडे साहब भी इंडस्ट्री से आए हुए हैं, मेरी बात को शायद अच्छे ढंग से समझ सकते हैं।
कि हमारा दुख यही था कि भैया आपके सारे रिसर्च, सारे इनोवेशन हमारा किस काम के हैं। जब तक वो हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने पेटेंट है और कितने आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं नेशनल इंटरनेशनल, वी डोंट बॉदर अबाउट। तो प्रॉब्लम वहां पे हुई। लेकिन एक कार को 1 लाख रुपए में बेचना, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और स्टील को फाइबर से चेंज किया गया, तमाम स्पेयर पार्ट्स को रिप्लेस किया गया। तो ये इट्स अ गुड एग्जांपल, इट्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल। बट फिजिबिलिटी एनालिसिस शायद सही ढंग से नहीं हो पाई, उस पर हम लोग आगे चले। यू मे हैव द ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, you may have the social innovation. I would like to give one example here, very classic. आज से करीब 40 साल पहले डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक ने सुलभ मूवमेंट की स्टार्टिंग किया, सुलभ शौचालय जिसको हम लोग कहते हैं। और ये आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। उन्होंने, उनका बड़ा सामाजिक बहिष्कार किया गया, समझ सकते हैं 40 साल पहले। और ही बेसिकली बिलोंग्स टू बिहार। तो लोगों ने कहा कि ये हमारी तो जो सोशियोलॉजिकल ऑर्डर है, जो हमारी जाति व्यवस्था है, इसमें आपका कार्य ही नहीं है, ये तो किसी और का कार्य है, और तमाम बात जो सोशल एविल्स वी ऑल नो वेरी वेल। In spite of that fact, he has realized that this is a biological need of every person. एक टैबू है, हम इसकी चर्चा नहीं करें, बात अलग है, लेकिन ये जरूरत सबकी आवश्यकता है। आप जा रहे हैं, आपको नीचे स्कॉलर, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? ओपन सड़क पे आप करेंगे, आप गंदगी करेंगे। और आप देखिए वो बेस कैसा बना कि जब 2014 में करंट गवर्नमेंट आई तो उन्होंने, I'm again saying, I'm not saying anything politically, so please don't take it in that way. Take in terms of the management innovation. They have realized this fact and they have re-established the स्वच्छ भारत अभियान। आपको जानकारी होनी चाहिए, स्वच्छता की बात सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने किया था, इसीलिए 2 अक्टूबर को ही इसको स्टार्ट किया गया, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो अपना शौचालय खुद स्वयं साफ, जबकि उस समय आज की तरह का शौचालय नहीं होता था, बिल्कुल ड्राई होता था। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के सोशल इनोवेशन, अभी एक और इशू पे काफी वर्क हुआ और बहुत अच्छा हुआ हमारे यहाँ। हम सभी जानते हैं कि वुमेन हैज टू पास थ्रू अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और सैनिटरी पैड्स की बहुत कमी है, जो है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की हैं, जो कि कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली गांव की महिलाएं जो है। अब ये देखिए एक टैबू था, हमारी माताएं बहनें इसके बारे में इतना नहीं चर्चा कर पाती, शर्म के मारे, तमाम तरह की बीमारियां होती थी, कोई चर्चा भी नहीं कर पाता था, और ये एक सामाजिक समस्या के रूप में भर रहा। फिर आपको मालूम है इसके ऊपर पूरा मूवमेंट हुआ है, और बहुत ही सस्ते रेट के सैनिटरी नैपकिन अच्छी क्वालिटी के बनने शुरू हो गए, और उसकी डिस्पेंसिंग मशीन्स बनी। हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में भी ऐसी 2 डिस्पेंसिंग मशीन बच्चियों के लिए लगवाया हुआ है, so that they can be protected from such kind of disease or problem। ये भी एक तरह का, और इस पे बहुत सी फिल्में बनी, आप सभी मालूम है, इन दोनों ही विषयों पे पिक्चरें बनी हैं, और एक सामाजिक जागृति हुई है। नाउ इट्स गुड थिंग दैट वी आर नॉट ट्रीटिंग इट एज अ टैबू, नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इनोवेशंस। सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल आप जानते हैं कि देयर इज अ ट्रिपल पी बॉटम लाइन अप्रोच, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हुआ क्या कि सारा फोकस तो हमारा प्रॉफिट पे हो गया, बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। वी हैव फॉरगॉटन द प्लैनेट, एनवायरनमेंट तो हम भूल गए। और जब एनवायरनमेंट भूल गए तो अभी जो आज सारी कहानी हो रही है कोविड की, उसकी एक ही दवा अभी तक निकल पाई है, वो ये है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। और इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा जब हम टॉक्सिसिटी खुद ही इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हम परेशान हैं और अपने घर के पेड़ों को काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं है। जब ऑक्सीजन हमारे पास होगा नहीं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होगी, और फिर हमें एक्सटर्नल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं। तो इस फील्ड में अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काफी काम हो रहा है। अभी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में मिला सेलिब्रेशन था, जहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। तो ये कुछ मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया कि
अब देखिए आज इस समय डिसरप्टिव इनोवेशन का दौर है। डिसरप्टिव इनोवेशन वो होता है कि शुरू में तो लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं, पर धीरे धीरे उसको लोग एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, जिससे मैंने आपको टेस्ला का एग्जांपल दिया। नेटफ्लिक्स इस तरह की जो ओटीटी हैं ये हम लोग यूज करना अब शुरू। अब ये पहले धीरे धीरे आया तो लोग सोचते थे पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आपको मालूम है पिछले 1 सवा साल से कोविड की सिचुएशन में सारे सिनेमा हॉल करीब करीब बंद पड़े हुए हैं एंड पीपल नीड द एंटरटेनमेंट। अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं किसी मल्टीप्लेक्स में तो एक पिक्चर देखना कितना कॉस्टली होता है आप सभी। एक तो महंगी टिकट, 150 रुपए का पॉपकॉर्न खाइए, 80 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पीजिए, इतना महंगा खर्चा हो जाता है। और हम लोग बड़ा प्राउडली कहते हैं कि वाह क्या टेस्ट था पॉपकॉर्न, क्योंकि 150 रुपए का पॉपकॉर्न खा रहे हैं। वहीं बाहर सगड़ी को मिल रहा है 10 रुपए का, तो हमको शर्म आती है क्योंकि वो हमारे स्टेटस के खिलाफ चला जाता है। ये फाल्सहुड में हम बहुत अच्छा खासा पैसा, जिसमें भी पिक्चर तो सभी लोग देखते ही होंगे, देखे भी होंगे, अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है और उससे बहुत कम अमाउंट में आप नेटफ्लिक्स जैसे कि सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपने घर में अपना। आजकल अच्छी अच्छी टीवी आ गई हैं। अब ये देखिए धीरे धीरे आप इतनी वेब सीरीजें आनी शुरू हो गई हैं नेटफ्लिक्स पे, बहुत सी पिक्चरें नेटफ्लिक्स के लिए बन रही हैं और एक नई क्रांति। और मैं बता दूं कि ओटीटी जो है ये दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। ये भी एक इनोवेशन है, डिसरप्टिव इनोवेशन। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द डिजाइन इनोवेशन देयर आर थ्री पार्ट। डिजायरेबिलिटी ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की इच्छा, फिजिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि इसको हम अडॉप्ट करें, हमें बहुत दिक्कत ना हो, हम आराम से उसे अडॉप्ट कर सकें, और वायबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। अगर ये तीन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो आप दुनिया की कोई भी इनोवेशन मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होगी, कॉमर्शियली लॉन्च नहीं कर सकते। अगर कहीं उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हैवी, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हमने एनी हाउ अगर उसको कर लिया तो हमारी ब्रेक इवन नहीं आएगी। कस्टमर की डिजायरेबिलिटी किस बात पे होगी, मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। अब वो टेस्ला हो चाहे नेटफ्लिक्स हो, अगर ओटीटी पॉपुलर हो रहा है तो इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर 4 मेंबर्स की एक फैमिली है और एक बार जाए तो 2,500 3,000 रुपया खर्चा हो जाता है, जो काम हमारा 400 500 में हो सकता है। दे आर ट्राइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। और बिजनेस की वायबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, कस्टमर रिटेंशन हो, बार बार कस्टमर आए, बार बार उसको परचेस करें। पांडे साहब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थे, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एक जमाने में 30% शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला है और ऑल ऑफ सडन फिर वो डिक्लाइन किया। कारण क्या था? क्योंकि जो नॉर्मल एलआईसी का एजेंट होता है, आप सबके घर में किसी न किसी ने एलआईसी कराई होगी, वो एक फैमिली मेंबर की तरह होता है। वो लाइफ लॉन्ग 20 साल, मेरे खुद के जो एलआईसी एजेंट है 25 साल से हमें सर्व कर रहे हैं। लेकिन मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, पर जो फेस किया गया कंज्यूमर द्वारा, सर्विस यूजर द्वारा, कि एक ने इंश्योरेंस कराई और अगले 6 महीने बाद वो कोई और इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लिए और दूसरे ने उनको सर्विस नहीं दी और परेशान होकर उस व्यक्ति को बार बार जाके खुद ही अपना प्रीमियम जमा करना पड़ा। तो उस जमाने में तो ऑनलाइन का अपना दौर नहीं, तब करा गया। तो ये वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के प्रॉब्लम को सॉल्व। अब देखिए कोई जो इनोवेशन होता है वो दो चीज से कंट्रोल होता है। एक है डिमांड और दूसरी है सप्लाई। हम इनोवेट कर रहे हैं पर क्या वो डिमांड में है? क्या लोग उस इनोवेशन की डिमांड कर रहे हैं? वो धीरे धीरे करे, कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन में धीरे धीरे डिमांड जनरेट, लेकिन हो अगर वो है और डिमांड कब जनरेट होगी, जैसे मैंने कहा कि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपको मैं कुछ एक इंस्पायरिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स की बात करूंगा और ये कोई नई फिनोमिना। आप देखिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से सबसे पहले लिज्जत पापड़, जैसे अमूल का एग्जांपल हम सब जानते हैं, लिज्जत पापड़, श्री महिला ग्रामोद्योग लिमिटेड, 9 महिलाओं ने लिज्जत पापड़ की स्टार्टिंग करी बहुत कम अमाउंट।
एंड यू नो व्हाट इज द इनोवेटिव पॉइंट ऑफ दैट लिज्जत पापड़? आपको मालूम है ये गांव गांव में महिलाएं इसको बनाती, लेकिन आप लिज्जत पापड़ का कोई भी बैच लें, यू विल गेट द सेम टेस्ट एक बार, और सेम डायमीटर, 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस आपको उसके डायमीटर में नहीं आएगा, उसकी जो गोलाई उसमें नहीं। क्यों? क्योंकि जो मसाला है वो एक जगह पे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बनता है, उसकी पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती है ताकि एक जैसा टेस्ट है, और पापड़ को काटने के लिए वो एक जैसी डाई। अभी देखिए, क्वालिटी कंट्रोल तब तो आसान होता है जब हमारे प्रेमाइस में हो रहा है, हमारी अपनी प्रेमाइस में हो रहा है तो उनको मैनेज करने, लेकिन गांव गांव में जाके वो चीजें हो रही हैं और फिर भी हम क्वालिटी को अगर मैनेज कर रहे हैं, ये इनोवेशन। दूसरा मैं एग्जांपल दूंगा, मिस्टर कौशलेंद्र, he has been the topper of IIM Ahmedabad, and after passing out, although he has got so many offers, IIM ग्रेजुएट का टॉपर को आप समझ सकते हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपए के ऑफर्स मिलती हैं। Instead of accepting the job, he basically belongs to Bihar. उन्होंने एक चीज को स्टडी किया कि आज मैंने खुद भी अभी एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कुछ एक साल पहले कि मेट्रोपॉलिटन्स में ऑन एन एवरेज अ पर्सन हैविंग एन इंटेक ऑफ 5 kg of toxic materials, either through inhalation or through water or through pesticide, insecticide, ये सब कुछ मिला जुला के करीब, या हम कोई प्रदूषित हवा ले रहे हैं, ये करीब करीब एवरेज 5 kg का एस्टिमेशन। ये मेट्रोपॉलिटन्स में था, छोटी सिटीज में थोड़ा। और हम जान रहे हैं उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम इतने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं कि वो आना ही आना। हमें याद है बचपन में हम लोग के गांव से गेहूं आता था, माता जी उसको पूरा सफाई करती थी, और मैं खुद अपनी साइकिल में उसको लेके बगल के आटा चक्की पे जाता था, उसको पिसवाता था, और फिर वो हमारे घर में आता था, रोटियां बनती थी। वो टेस्ट की बात है। अब वही हम लोग खाते हैं अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड का आटा, किसके पास टाइम है सब कुछ करने का? और कौन जानता उस गेहूं को कोई सफा कर रहा है? कौन सफा कर रहा होगा? मुझे तो नहीं लगता कोई सफाई कर रहा होगा। उसको ले जाके पलोराइजर में डाल के पीस करके आटा हम लोग को दे दिया जा रहा है, और हम लोग बड़ा खुश होकर के उसको खाते हैं और बोलते हैं वाओ क्या टेस्ट है। और उस टेस्ट के अंदर अंदर क्या क्या चीज हमारे बॉडी में जा रही है, वी डोंट नो। तो ही हैज आइडेंटिफाइड दैट प्रॉब्लम। अब हियर देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है पहला। इन्होंने क्या किया, अभी आप लोग जो होंगे गूगल में सर्च भी कर लीजिएगा मेरे लेक्चर के दौरान में ही, 35 to 40,000 families of Bihar and Jharkhand are now associated with farmers family। ये बात याद रखिए, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, स्टार्टअप होता है, वो सिर्फ व्यक्तियों को जॉब नहीं देता है, वो पूरे परिवार को नौकरी देता है। उसके पैसे से पूरा परिवार चलता है, उसके बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग। मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ। कई बार कई मंचों पे हमारी एक चर्चा होती तो लोग कहते हैं भाई कैपिटलिस्ट तो बड़े भौतिकवादी होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं नहीं मानता। वह कैसे आप बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने किया था। तो उनसे पूछा गया भाई एक नॉर्मल आदमी कहाँ 18 पुराण पढ़ पाएगा, आप जरा बताइए इसका जिस्ट क्या है? तो ही हैज मेंशन्ड वन श्लोक, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय। मीनिंग इज दैट कि 18 पुराण का सार दो ही है कि आप अगर किसी की सहायता कर रहे हैं, परोपकाराय, अगर आप किसी का परोपकार कर रहे हैं तो उससे बड़ा पुण्य नहीं। और आप किसी का भी नुकसान कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से आप किसी को हानि पहुंचा रहे हैं मन से। जैन धर्म में कहा गया ना कि मन में भी अगर विचार आ गया आपके बारे में बुरा तो वो भी हिंसा है। वाचा, हमने आपको कुछ गलत शब्द बोल दिया, हर्ट कर गए आप, वो भी एक तरह की हिंसा है। और कर्मणा, हमने फिजिकली आपके ऊपर अटैक कर दिया। तो किसी को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं, देयर इज नो सिन लाइक दैट। और किसी का तो एक सोचिए, एक एंटरप्रेन्योर
इतने फैमिलीज का परोपकार कर। आज इस कोविड में इस बार एक अच्छी बात हुई कि प्योरली लॉकडाउन नहीं किया गया, पार्शियली किया गया। पिछली बार जो समस्याएं खड़ी हो गई थी, तो कम से कम लोग का परिवार तो चल रहा है। आप एक एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बनते हैं कि पैसा कमाना, उसके लिए आजकल बहुत से, आपको मालूम है, आप आज करोड़ करोड़ रुपए की जॉब्स ऑफर हो रहे हैं। दिस यू डू फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फॉर योर क्रिएटिविटी। एंड आज कौशलेन जी ने जो 35,000 या 40,000 किसान परिवारों को जो रोजगार दिया, एक तरीके से स्वरोजगार दिया, ये कितना बड़ा सोचिए। और दे आर डायरेक्टली सप्लाइंग दीज ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू एवरी। आप जितने भी, मैं कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स को मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, समय थोड़ा सा कम है। जैसे नेटफ्लिक्स और टेस्ला के एग्जाम्पल के अलावा फ्लिपकार्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 22-23 साल पुरानी, जब Naukri.com वॉज स्टार्टेड बाई हरीश बिखचंदानी, संजीव बिखचंदानी। उस समय नया नया इंटरनेट आया, ये www डॉट नया नया 1995 में एक तरीके से थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुआ। He was also a graduate from IIM Ahmedabad, working in the Hindustan Lever. At that time Hindustan Lever बोलते थे, यूनिलीवर बोलता है। उनकी भी ऑटोबायोग्राफी है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग प्लीज, जितने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स उनकी ऑटोबायोग्राफीज वगैरह या उनकी स्टोरीज या उनकी केस स्टडीज पढ़ा करिए। सब नेट पे अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप लोग नेट पे रहते हैं स्मार्टफोन पे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सारे मैनेजमेंट थ्योरी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। उस समय उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की जो जॉब की प्रॉब्लम है बढ़ने वाली है। और तब जॉब प्राइवेट सेक्टर में उतने नहीं हुआ था, ज्यादातर सरकारी थे, लेकिन वो सब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे थे। और आपको मालूम है मनमोहन सिंह जी आ गए थे, तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की थी, तो इफेक्ट्स आने शुरू होने, लेकिन अभी बहुत टाइम था। बट ही हैज फोरसीन द इशू। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है कि फिजिकली लोग जा जाके नौकरी करें, क्योंकि हम लोग, मैं 1990 में मैंने MBA किया BHU से, और वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्योंकि उसके बाद मंदी आ गई और हम लोग को ऐसे ही कभी दिल्ली जा रहा है इंटरव्यू देने, कभी मुंबई जा रहा है इंटरव्यू देने, नौकरी मिलती नहीं थी। स्ट्रगल वाज, उस जमाने में कैंपस इंटरव्यू वगैरह जैसा कोई कॉन्सेप्ट हुआ नहीं करता, सब सरकारी कंपनियों में ज्यादातर नौकरियां थी। हम लोग तो इमेजिन नहीं करते थे कि क्या इंश्योरेंस में भी कोई सरकारी प्राइवेट सेक्टर आएगा, या बैंक में भी कोई प्राइवेट सेक्टर होगा, सब सरकारी। तो व्हाट ही डिड, he created a platform, virtual platform, Naukri.com, where the database of employer is also available and employees also. नौकरी देने वाले का भी डेटाबेस है, नौकरी लेने वाले का भी है। अब आप अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिए। अब अगेन मैं आपको 3C मॉडल पे लेके आ रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चाहिए, चॉइस थी आपके पास, है आज क्या आपके पास? चॉइस, अलग अलग सेक्टर की चॉइस है, अलग अलग इंडस्ट्रीज की चॉइस है, अलग अलग पोजिशन की चॉइस, कन्वीनियंस है आपके पास। आप अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको CV फिजिकली भेजने की जरूरत नहीं। हम लोग तो अपने जमाने में पोस्ट ऑफिस जाते थे, लिफाफे में भर रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं, कुछ नहीं, आप अपने CV बनाइए तो उनको वहीं का वहीं अपलोड कर दीजिए। एंड कॉस्ट, भाई वो सब कॉस्ट बची आपकी, एम्प्लॉयर की बची, एम्प्लॉय की बची। मैं 3C मॉडल को आपको हर जगह बताऊंगा। अभी Shaadi.com पे ही, तो दे हैव ट्राइड टू सॉल्व व्हाट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ जॉब। मैं आ रहा हूँ Shaadi.com, ये भी उसी दौर की शुरुआत है, 23-24 साल पहले। अब देखिए, उस जमाने में इनके प्रमोटर्स ने फोर्स ही कर लिया कि हमारा समाज, भारतीय समाज जो है, वो पहले आपको मालूम होगा संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिलीज, ज्वाइंट फैमिलीज वी आर फ्रेगमेंटिंग इनटू व्हाट, न्यूक्लियर फैमिली। और अब तो समझिए साहब अल्ट्रा न्यूक्लियर हो गए। पहले तो ज्वाइंट नहीं थी, फिर पति पत्नी, हम दो हमारे दो, हिसाब किताब न्यूक्लियर फैमिली। और आज की डेट में कंडीशन ये है कि पति कहीं और, पत्नी कहीं और, बेटा कहीं और, बेटी कहीं और।
ताकना है, रॉ मटेरियल खरीदना है तो भी जाना है। आज क्या हुआ कि इंडिया मार्ट हैज प्रोवाइडेड अ B2B प्लेटफॉर्म। आप इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे जब मौका मिले जाके उसको सर्च करिएगा, आपको कोई भी सप्लायर, कोई भी मशीनरी सप्लायर, कोई रॉ मटेरियल सप्लायर, कोई एक्सेसरी सप्लायर, एवरीबॉडी इज अवेलेबल ओवर देयर। और एक उनकी मेंबरशिप कॉस्ट अपना ले लीजिए, वैसे आप फ्री लिस्टिंग भी करा सकते हैं। वो तो खैर उनका रेवेन्यू मॉडल, क्योंकि चलाना तो रेवेन्यू मॉडल चाहिए, बट यू कैन अप्रोच। यात्रा.com, मेक माई ट्रिप। पहले के जमाने में हम लोग कहीं जाते भी थे तो होटल खोजने के लिए पहले उतरिए, फिर होटल खोजिए, होटल खोजने में 2 घंटा 3 घंटा लग। आज यात्रा.com या मेक माई ट्रिप पे जाइए, अपनी फ्लाइट बुक कर लीजिए, अपनी टैक्सी बुक कर लीजिए, बस बुक कर लीजिए, होटल बुक कर लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट रिलेटेड विद दैट टूरिज्म पार्ट और ट्रेवल पार्ट, यू कैन डू दैट। आजकल आपको मालूम है, आप सभी के यहाँ यूज हो रहा होगा जोमेटो, स्विगी। अब देखिए कितनी बढ़िया चीज ये आ गई। अगेन, चॉइस, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट। और एंड दिस हैज क्रिएटेड, जोमेटो लाइक कंपनीज हैज क्रिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मान के चलिए कोई महिला है, अपने घर में है, बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, एक कोई खास किस्म की डिश बहुत अच्छा बना, खाना बहुत बढ़िया बनाती है, पर वो कोई होटल नहीं खोल सकती, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकती, तो इतना पैसा नहीं। तो ये जो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आ गया कि अब आप इनके साथ अगर टाई अप आपका हो गया, तो लोगों को खाने से मतलब है, लोगों को एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि भाई हमारा, अगर हम पनीर की सब्जी खाना है तो बहुत बढ़िया टेस्ट होना है। आपका हो सकता है खाना उन्हें अच्छा लग गया, तो पता लगा कि अब आप देखिए दिल्ली में पराठे वाली गली है, सिर्फ पराठे के लिए मशहूर है, वहां पराठे ही खाने के लिए लोग चले जाते। तो ये भी एक नई चीज दी, ये भी एक स्टार्टअप वेंचर। IRCTC, मैं अब एक सरकारी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हम थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं सरकारी सिस्टम को, बट IRCTC हैज प्रूवन दैट इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग जब कॉलेज से निकले, जब नौकरी खोजने की चक्कर होता था, अब बनारस से मान के चलिए मुझे मुंबई जाना, तो उस समय बॉम्बे हुआ करता था, तो बनारस में लाइन में, लंबी लाइन में खड़े होकर के रिजर्वेशन कराना पड़ता था, टिकट मिलता था, उस समय रजिस्टर पे सब चीजें लिखी जाती थी। और जब बॉम्बे से बनारस आना, तो यहाँ से रिजर्वेशन नहीं मिलता था। फिर जब बॉम्बे पहुंच गए तो पहला काम ये करते कि उतर करके पहले वापसी का रिजर्वेशन कराओ। ये हमारी हालत थी। आज एक छोटा सा बच्चा भी चाहे, इट्स ऑन देयर फिंगर टिप्स, IRCTC से आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। और उन्होंने बहुत चीजें जोड़ दी, उसमें फ्लाइट भी जोड़ दिया, उसमें उन्होंने होटल्स भी जोड़ दिए। अगेन, चॉइस, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट। लंबी लाइन में खड़ा होना है, आने जाने का खर्च, ये सब बचा। चॉइस है, जिस ट्रेन से चाहते हैं, जिस सीट पे चाहते हैं, वो अपना बुक करा सकते हैं। कन्वीनियंस है, बैठे बैठा आपका सारा काम हो जा रहा है, आपको सिर्फ नंबर भी आपके पास, मैसेज भी आ गया, आप दिखा दीजिए, कोई भी टीटी आपको नहीं कुछ बोलेगा। आई विल अनदर टेक एग्जांपल, ओयो रूम्स। ओयो रूम्स में दो प्रॉब्लम पे था। एक, अमूमन हम सभी जानते हैं, जब हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो ज्यादा समय हम होटल में नहीं बिताते, हम ज्यादा समय बाहर बिताते। होटल में तो हम रात को आते हैं सोने के, वो चाहे आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो, ऑफिशियल ऐसे काम पे जा रहे हैं, या आप टूरिज्म के पर्पज, क्योंकि कोई होटल में सोने के लिए थोड़ी बात। जब रात को आएंगे तो हमें एक अच्छी नींद चाहिए, वी नीड अ साउंड स्लीप। और एक क्लास है, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, कि यार वो कमरा हमारे बेडरूम से खराब नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एट पार विद माय बेडरूम। अगर मेरे बेडरूम में एक AC है तो वहां भी एक AC होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उससे तो बेहतर ही उन्होंने किया, और बड़े अफोर्डेबल रेट्स में उन्होंने कमरे दिलवाए। मजेदार बात है कि ओयो रूम का अपना कोई होटल नहीं, सब फ्रेंचाइजी। और दूसरा, एक समस्या और होती है कि अ, अमूमन जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे खाने का टाइम फिक्स नहीं रहता, लंच का टाइम। ऑफिस में है, कॉलेज में है, तब तो मालूम भाई इतने बजे लंच होगा, हम खा लेंगे। बाहर गए किसी काम से, कभी 3 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 4 बजे खाना खा रहे हैं, और आजकल मैक्सिमम लोग, आपको भी मालूम होगा, डायबिटिक हो गए हैं। तो एक समय अंतराल पे हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जो कि डॉक्टर्स की एडवाइस। तो व्हाट दे डिड, दे प्रोवाइडेड अ कॉम्प्लीमेंट्री फूड इन ब्रेकफास्ट।
अब आप ब्रेकफास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है उसमें एक बढ़िया हैवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका पैसा अलग से नहीं लगना है। तो आप 3 बजे भी खाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं खाए हुए हैं और फिर आप 3 बजे खाएंगे तो फिर आपको नुकसान। अब से दे क्रिएटेड दिस मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रॉब्लम। तो अगेन चॉइस आप डाउनलोड करिए, अपने हिसाब से होटल खोज लीजिए, हर रेंज के ओयो के रूम्स हैं, कन्वीनियंस बुक कर लीजिए इमीडिएटली, आराम से आपका रिक्शा ऑटो वहां से सीधे उसी होटल पे जाएगा, आपको घूम घूम के होटल खोजने की जरूरत नहीं। कितना बढ़िया चीज। OLX, हमारे घर में सोफा है, अब भाई अब लोगों का धीरे धीरे पैसा आ रहा है तो सोचते हैं यार चलो बढ़िया है नया सोफा ले लेते हैं या नई कार ले लेते हैं या कोई और भी जो सामान है। अब हमारे लिए तो वो पुराना सोफा है, लेकिन जिस घर में सोफा ही नहीं है उसके लिए तो सोफा होना ही बहुत बड़ी बात हो। तो अब जाए का, पहले क्या लोग करते थे, कबाड़ी वाले को बेच देते थे तो औने पौने दाम पे चीजें बिकती। सो नाउ यू कैन सेल ऑन द OLX। और हो सकता है आपको पता भी नहीं होगा, आपकी कॉलोनी में आपके पड़ोस का ही कोई आदमी जिसको जरूरत हो वो आपको कुछ कर लेगा, लेकर के यू विल गेट अ गुड प्राइस बाय नेगोशिएशन। तो दे हैव आल्सो क्रिएटेड, अब ये देखिए C2C मॉडल था, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल था, कस्टमर टू कस्टमर मॉडल था, जहां अगेन चॉइस, कॉस्ट एंड कन्वीनियंस का इशू। अब जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं, जूम, पिछले साल लॉकडाउन के पहले तक जूम, गूगल मीट, वेबएक्स, मैसेंजर, ये सब कोई जानता ही नहीं था, बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ एक्सपोजर नहीं था। लेकिन आज मैं यहाँ बनारस में बैठा हूँ, आप कानपुर में बैठे होंगे, अलीगढ़ में बैठे होंगे, हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म हैज सॉल्व्ड अवर प्रॉब्लम ऑफ द फिजिकल इंटरेक्शन जो हम लोग नहीं कर पा रहे बिकॉज। तो बहुत सी एरियाज हैं जिसपे हम सोच सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की है, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हो, इंजीनियरिंग के भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो यू नो यू कैन थिंक ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ग्रीन पावर, बायोफ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास, दीज आर द एरियाज। अभी इको टूरिज्म पे बहुत फोकस है, कल्चरल टूरिज्म, ये बहुत। अभी मैं कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले भूटान में हमारा हो रहा था, भूटान में, तो वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स आपको मालूम है काफी हाई है, इंडिया में लो है, पर तो हैप्पीनेस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट हमने वहां पे बोला कि लोग आके देखें भूटान में कि भाई लोग खुश कैसे। तो यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन। अभी आयुर्वेद में बहुत है, जब से ये कोविड आया लोगों ने आयुर्वेद के महत्व को समझना शुरू किया। पहले तो हम लोग चूंकि अपनी चीज का महत्व नहीं करते, वो विदेशी जब कहते हैं तब हम लोग मानते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, विदेशी बोल रहा है, वो गोरा बोलता है तो अच्छा बोलेगा। हमारे यहाँ वो 7,000 साल 1,000 साल पहले लिख दिया गया, वो हम लोग नहीं नहीं बेकार फालतू, हमारे यहाँ की चीज ना बेकार। गोरा बोलता तब ठीक बोल रहा है, गोरा बोला नहीं भाई खाओ, ये बिना जड़ी बूटी खाए हुए, बिना गिलो खाए हुए, बिना खड़ा खाए हुए आपकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, तब ठीक है, तो हम लोग लग गए। और ये मान के चलिए, भगवान ना करे किसी को हुआ हो यहाँ पे, मुझे कभी हुआ था, हमको डॉक्टर ने बोला लिमसी का वो खाओ टैबलेट विटामिन सी के लिए। अब हमारे यहाँ च्यवनप्राश एक जमाने से हम लोग का बनाया गया है जो विटामिन सी, आंवला आपको मालूम है, आंवला रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, साइट्रस के जितने भी हैं वो सब विटामिन सी के रिच सोर्स। हमने ये सब छोड़ दिया, हम वो लिमसी की टैबलेट जो कि ब्लैक में मिल रही है उसको खाने पे जोर लगाया हुआ। तो ये चीजें ऐसी जिसमें हम लोग काम, वैल्यू एडिशन। देखिए अब वो समय गया कि हमने सिर्फ जड़ी बूटी बेचा, नहीं, उसमें वैल्यू एडिशन। हनी, जितनी डिमांड है इंडिया में उससे कम हनी का प्रोडक्शन। जो हनी आपको मिल रही है वो, क्षमा कीजिएगा, वो एडल्ट्रेटेड हनी है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काफी काम किया हूँ, मुझे मालूम है। इन्वर्ट शुगर जो होता है, फ्रुक्टोज और सुक्रोज को तोड़ करके उसको इन्वर्ट शुगर को लेकर के मिक्स करके वही बेचा जाता है, उसको हम लोग हनी समझ खाते हैं, जो कि हनी नहीं है। हनी का उतना प्रोडक्शन ही नहीं है। हनी का तरीका आपको मालूम, अलग अलग फ्लावर से हनी बनती है, तो सबके फ्रेग्रेंस अलग होंगे, सबका कलर अलग होगा। लेकिन आप नाम नहीं लूंगा, चाहे जितनी बड़ी कंपनी का हनी उठाइए, सब एक कलर का मिलेगा, एक फ्रेग्रेंस की मिलेगी, एक फ्लेवर की मिलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सनफ्लावर की हनी अलग होगी, मस्टर्ड की हनी अलग होगी, है?
गुलाब की हनी अलग होगी, सबका अलग है ना भाई, फूल अलग अलग है तो सबका कलर भी अलग होगा, सबका स्वाद भी अलग होगा, लेकिन क्यों एक ही मिलता है आपको। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ ये गैप है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर शुद्ध हनी आपको चाहिए तो आप ऐसी चीजें बनाइए और लोग पैसा देने के लिए तैयार है। डेयरी इंडस्ट्री को उठा के देखिए, जितनी मिल्क की जरूरत है हमको उससे कम हमारा प्रोडक्शन है, हम इसी में खुश रहेंगे, हम 14% के रेट से बढ़ रहे हैं। अरे भाई पूरे भारतवर्ष की जरूरत पूरी कहाँ हो रही है, हम इम्पोर्ट करते हैं, हम ड्राई पाउडर हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि गांव से पशुधन खत्म हो गया। जो लोग भी गांव से जुड़े होंगे उनको मालूम है कितने गांव में गाय रह गए, क्योंकि लोग तो शहर भाग गए, तो गाय को कौन देखेगा। और गाय में एक आयुर्वेद में सिद्धांत है पंचगव्य का, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र। लोग आजकल गोमूत्र का मजाक उड़ाते हैं, उनको नहीं मालूम है कि गोमूत्र साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है कैंसर ट्रीटमेंट, लेकिन उसका एक तरीका है। अभी खादी ग्रामोद्योग ने डिक्लेयर किया कि वो गाय के गोबर को लेकर के पेंट बनाएंगे। जो लोग गांव से मेरी जनरेशन के लोग यहाँ, उनको मालूम है कि हम लोग के गांव के समय में पहले कच्चे घर हुआ करते थे। अब तो गांव में भी कच्चा घर नहीं मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा। कच्चे घरों में जो उसका लेपन होता था, उसके जमीन का, उसकी दीवारों का, वो गोबर से होता, और वो इतना बढ़िया होता था कि इतना कूलिंग होती थी उस पहले के गांव के जो कच्चे मकान में कभी कोई रहा हो उसको मालूम होगा, एयर कंडीशन फील है जितनी ठंडक होती थी गर्मी के दिन। और कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अब फिर से हमको वापस आना है, उसी नेचर पे आना है, आज उसी गोबर का यूज होना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के लिए। तो अगर हम कहते हैं गौ माता, तो उसका मतलब, क्योंकि धर्म से इसलिए चीजों को जोड़ दिया जाता है कि लोग माने हो। गाय एक समय बाद दूध देना बंद कर देती है, हम उसको कसाई को बेच देते हैं। अरे गाय जब दूध देना बंद भी करती है तो उसके पास गोमूत्र और उसका गोबर होता है, वो इन इटसेल्फ इतना वैल्यूबल होता है कि गाय का जो हम चारा देते हैं उसका खर्चा गाय खुद निकाल देगी। आप उसको धार्मिक दृष्टिकोण से ना भी देखें, अगर आप एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें, तो वो भी एक एरिया है जहाँ पे काम करना चाहिए। और आज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की डिमांड है। तो दे आर सो मेनी एरियाज। आप देखिए, अब जैसे नॉर्मली तो पोल्ट्री फार्म्स को हम प्रमोट करते हैं, लेकिन सिर्फ पोल्ट्री से काम नहीं, फार्म से मुर्गा बेचने से काम नहीं चलेगा। अब वैल्यू एडिशन का जमाना, व्हाई देयर इज नॉट एनी इंडियन मॉडल ऑफ केएफसी। आज भी हम केएफसी का प्रोडक्ट खा रहे हैं, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगता। क्या इंडिया का कोई मॉडल नहीं हो सकता? आज वापस प्लास्टिक पे बैन होने की बातें हो रही हैं, पार्शियली कर पाएंगे, फुली तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन दौर आ रहा है कि वापस हम पत्तल पे खाएंगे, दोना पे खाएंगे, कुल्हड़ में पानी पिएंगे, ताकि हमारे गांव की अर्थव्यवस्था ठीक हो, गांव के लोगों को रोजगार मिले, और जो हमारा कुम्हार था जो करीब करीब खत्म हो रहा है उसे फिर से रोजगार मिले। क्योंकि आप कुल्हड़ फेंकते हैं वो जमीन में जाकर के फिर वापस ठीक हो जाता है। प्लास्टिक की तरह नहीं, हजारों हजारों साल तक प्लास्टिक आपकी पूरी पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा अभी मैं यूपी, चूंकि हम लोग यूपी के ही हैं फिलहाल जितने लोग हैं, यूपी में मालूम है एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल लॉन्च हुआ है, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लॉन्च करने का प्रयास हो रहा है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसमें बनारस जैसे पूरे यूपी में 75 स्टेशन को मैपिंग की गई। अब जैसे हमारा बनारस है, बनारस में जो है वो बनारसी साड़ी के लिए मशहूर है, आप सभी जानते हैं। बगल में हमारे मिर्जापुर है, भदोई है, जो कि कारपेट के लिए मशहूर है। आपकी ब्रांच अलीगढ़ में है, अलीगढ़ तो अपने ताले के लिए मशहूर है, कानपुर अपने लेदर इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। तो व्हाट द एग्जैक्ट मॉडल इज दैट कि हम उस खास, जैसे बनारस में हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, ये एक सेक्टर है। अब हम अगर एक इकोसिस्टम स्पेशली डेवलप करें बनारस से 40 किलोमीटर के अंदर, आजकल आपको मालूम है जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दौर है, ये भी आईपीआर का एक पार्ट है, कि बनारसी साड़ी हम बोलेंगे तो बनारस से 40 किलोमीटर रेडियस में बनी हुई चीज को ही हम बनारसी साड़ी बोलेंगे। ये नहीं है कि उस बनारसी साड़ी को हम बनाए कहीं और हम बोले बनारसी साड़ी। अलीगढ़ का ताला अलीगढ़ी ताला है तो फिर अलीगढ़ में बनना चाहिए उससे 40 किलोमीटर रेडियस। तो वो क्या होगा, जब वो इकोसिस्टम डेवलप होगा तो बनारसी साड़ी से संबंधित और भी जो छोटे छोटे उद्योग है वो डेवलप होंगे। कारपेट वाले अलग डेवलप करेंगे, ताले वाले अलग डेवलप करेंगे, लेदर इंडस्ट्री अलग डेवलप करेगी। और इसको ऑल ओवर इंडिया पे ले जाने की प्लानिंग है। जैसे कि मान के चलिए कि मुजफ्फरपुर है, उसका लीची उद्योग बोर्ड, मिदनापुर का जूट उद्योग बोर्ड। तो
ऐसी चीजों को पकड़ करके चलने की। तो अभी कुछ लोगों ने हालांकि उपहास किया था, वुडन ट्रायल्स पे बात हुई थी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। अब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग एकेडमिशियंस भी यहाँ बैठे हुए हैं। आपको मालूम है रिसेंटली द 5+3+3+4 मॉडल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जो भी इंप्लीमेंट होना बाकी है। और अगर आप उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि 80% तक बच्चों के दिमाग का विकास जो है, ये साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में कोई गलत बात नहीं, वो 6 साल की उम्र तक हो जाता है। हमारे सबके, हम आप जितने बैठे हैं, हमारा 80% जो हमारे दिमाग का विकास था वो 6 साल तक हो गया, उसके बाद 20% का विकास हुआ है। और इसीलिए 5+3+3+4 किया गया। तो पहले क्या होता था कि शहर के बच्चे तो LKG UKG करके फिर क्लास 1 में एडमिशन लेते थे प्ले स्कूल के बाद, और गांव का बच्चा सीधे क्लास 1 में आ जाता। तो वो जो 60% विकास उसका उतना हो नहीं पाता था, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे गांव के बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते थे। तो अब ये हुआ कि नहीं, ये यूनिफॉर्म सिस्टम। अब गांव में भी 3 साल उनको क्लास 1 में एडमिशन लेने के पहले फाउंडेशन कोर्स करने पड़ेंगे। और उसका नियम क्या है, ये जान दीजिए। कहाँ पे मैं उद्यमता की बात को ला रहा हूँ, इनोवेशन की बात को ला रहा हूँ, कि गांव में या शहर में जब ये लागू होगा तो ये पढ़ाई किताबों से नहीं होगी, खिलौनों से, प्ले मेथड, जो प्ले स्कूल का कौन, खिलौने आएंगे कहाँ से? तो आपको मालूम होगा कि खिलौने हमारे यहाँ ज्यादातर हम लोग चाइना से। अब एक तरफ तो हम चाइना से लड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। बड़ी त्रासदी है। अभी देखिए वैक्सीन में प्रॉब्लम आ रही, सारे रॉ मटेरियल्स, दवा के 80% रॉ मटेरियल हम चाइना से मंगाते हैं। हम उसी चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं जो बीमारी पैदा करके कोरोना दे गया पूरी दुनिया को गिफ्ट के रूप में। ये उसका बिजनेस है, पहले हम आपको बीमार करेंगे फिर हम आपको दवाई देंगे। अब उसी चाइना से हमें लड़ना, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो खिलौना उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा। बनास में भी टॉय इंडस्ट्री है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, जब इतने खिलौनों की डिमांड आएगी तो जो खिलौना बनता है, मैं टेक्निकल बात बता दूं, वो एक कौरैया नाम की लकड़ी होती है जो कि ब्रेक नहीं होती। अगर वो गर्मी में भी बहुत सी लकड़ियां क्रैक कर जाती हैं, पर कौरैया जो एक पेड़ होता है उसकी लकड़ी क्रैक नहीं होती। तो उतने कौरैया ट्रीज का प्लांटेशन होगा पूरे देश में, एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी, सोशल इनोवेशन भी बढ़ेगा, और साथ साथ जो हमारा एक नॉर्मल जो स्टार्टअप है वो। मैं बस 2 मिनट लूंगा। रेहान सर, मेरे पास कितना समय और बचा है, प्लीज टेल मी। तो मैम हमें ऐसा कोई सर, ऐसा कुछ देना चाहते हैं, यू हैव टाइम। अच्छा, मैं मुझे मिलेगा ना समय 10-15 मिनट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि समय का नहीं भी नहीं, ध्यान आप बहुत रखना है, अच्छा बच्चों को बता तो रहे हैं, तो यू कैन कंप्लीट, आप जो भी कहना चाहते हैं यू कैन कंप्लीट विद दैट सर। अच्छा अच्छा अच्छा। लोकल हैंडीक्राफ्ट, अब जैसे चुनार का आपको सबको मालूम है कि जो सैंड स्टोन से बनी हुई चीजें हैं वो बड़ी पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में जाती हैं। और वहां का जो कारीगर है, क्योंकि हमारे बगल में ही है, 30 किलोमीटर की दूर पे है बनास, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करके उनमें भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है। क्योंकि लोग आजकल चाहते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को यूज करते हैं अपने घरों में सजाने के लिए, संवारने के लिए। अब आपके पास देखिए, मैं अभी बताऊं, पिछले साल हिंदुस्तान ने 150 से ऊपर चाइनीज एप्स को बैन किया। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हम अपना विरोध अपने ढंग से प्रकट करेंगे। लेकिन फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं कि कंज्यूमर को या कस्टमर को तो हमें ऑप्शन देना पड़ेगा ना भाई। आपने कह दिया नहीं, ये ऐप आप यूज नहीं कर सकते, चाइनीज है, वेरी गुड। तो आप कहते ना कि ये हमारा इंडियन मॉडल है, इसको आप यूज करिए। कई बार हमारी मजबूरी हो जाती है, हमारे पास इंडियन ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें मजबूरी में वो चाइनीज चीजें लेनी पड़ जाती। अब यहाँ पे हमारे जो बच्चे इसमें IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा। देखिए, मैं दोनों बातें आपसे कर रहा हूं, मैं आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ और IT की बात। एग्रो बेस्ड में हमने आपको बहुत से एग्जाम्पल्स बताया। देखिए, एक समस्या हमारे देश में ये है कि अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के रूप में स्वीकारा।
65 से 70% लोग हमारे गांव में रहते हैं। और हमने डेवलपमेंट के मॉडल्स कहाँ बना दिए? बेंगलोर में बना दिया, दिल्ली में बना दिया, बॉम्बे में बना दिया, गुड़गांव में बना दिया कि भाई अगर विकास करना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा। हमारे कानपुर में, अलीगढ़ में, बनारस में, देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, जौनपुर में कोई स्कोप नहीं। तो हमारा युवा कहाँ जाएगा? उधर ही जाएगा। और जब आज के डेट में कोविड हुआ, पिछले साल याद होगा आपको, लॉकडाउन हुआ, तो 3 महीने का खाना नहीं था उसके पास, और वो पैदल ही चल पड़ा अपने गांव की तरफ कि भाई गांव में जाएंगे कम से कम जिंदा तो बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी ओल्ड फिलोसफी को छोड़ दिया। महात्मा गांधी जी ने उस जमाने में स्वदेशी की बात किया था, उस जमाने में उन्होंने ग्राम स्वराज्य की बात किया था। ग्राम अपने आप में एक स्वराज्य के रूप में डेवलप हो सकता है। हमने कहीं ना कहीं उसे छोड़ दिया और वापस हमें आना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि हर शहर की अपनी सीमा होती है। एक समय बाद वो सैचुरेट कर जाएगा और बहुत से सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सब चीजें होंगी। आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको सबको पता है कि अन्य कई प्रदेशों में यूपी और बिहार के लोगों को मार मार के भगाया गया कि भागो यहाँ से, तुम जाओ अपने स्टेट में जाकर के खोजो नौकरी। हमने प्रयास ही नहीं किया, हमने तो छोड़ दिया अपने गाँव को। तो प्रॉब्लम क्या है कि किसान भी एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे कुछ सर लोग होंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, उनको मालूम होगा अच्छी तरीके से, वो बताते भी होंगे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरबिलिटी, हम कुछ इंग्रेडिएंट्स बताते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। किसान के पास लैंड होता है, उसका अपना लेबर होता है, श्रम होता है, कैपिटल भी वो अपना यूज करता है, इस्तेमाल करता है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, किसान से ज्यादा कौन जोखिम ले? कोई नहीं ले सकता। कब मालूम उसकी फसल खराब हो जाए, कब ओला हो जाए, क्या हो जाए। एक चीज में वो लैक करता है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। और यहाँ पे चाहिए कि जो हमारे युवा हैं, जो यहाँ पे एमबीए हैं और भी जो इस तरीके के मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं या हमारे टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, यू आर हैविंग दैट एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर बीइंग ट्रेन फॉर दैट। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको शेक हैंड करना, उनके साथ हाथ मिलाना कि ठीक है, शहद तुम निकालो, उसकी मार्केटिंग और सारा एस्पेक्ट हम देखें। जब तक ये शेक हैंड नहीं होगा तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, गांव नहीं आगे बढ़ेगा। गांव आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हमें स्मार्ट सिटी है, अच्छी बात है, वैसे तो स्मार्ट सिटी से ज्यादा जरूरत हमको स्मार्ट सिटीजन की है, क्योंकि हम लोग अभी खुद को स्मार्ट बना नहीं पाए हैं, स्मार्ट सिटी की अपेक्षा रखते हैं। कहीं भी पान खा के थूक देंगे, कहीं गुटखा खा के थूक देंगे। पहले तो हमको अपनी हैबिट और अपनी माइंडसेट को ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन स्मार्ट सिटीज के साथ साथ स्मार्ट विलेजेस की भी आवश्यकता है, और वो तभी होगा जब हमारे युवा उसकी तरफ देखना शुरू। हमारे जो आईटी के लोग हैं, वो अपने बिजनेस मॉडल्स को प्रॉब्लम बेस करके B2B, B2C, C2C, C2B एप्स, है ना, बीपीओज हैं, केपीओज हैं, एलपीओज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन से हो रही है। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हो रही है, एंड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम रिमोट कंट्रोल। तो व्हाट टू डू? एक माइंडसेट होता है सेल्फ स्टार्टर, एक माइंडसेट होता है सेल्फ मैनेजर का। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास सेल्फ स्टार्टर और सेल्फ मैनेजर दोनों की माइंडसेट। तो बी आइडिया है वो हमारे किस कस्टमर सेगमेंट, अपने अपनी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग करनी है, तो किस सेगमेंट ऑफ मार्केट की प्राइसेस यू आर फिक्स विद
और दूसरों को भी कहेगा। देखिए, बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर इज द सेटिस्फाइड। मानेंगे, आप रियल यूजर की बात मानेंगे, वो तो कहेंगे यार ठीक है, प्रोफेशनल हो गए, पैसा ले रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। और अगर आपका दोस्त कह दे नहीं साहब बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मैंने तो यूज किया वो, आपके भाई बहन कहते नहीं, जैसे मूवीज हम लोग देखते हैं ना, अपने फ्रेंड बोलते हैं बेकार मूवी है नहीं जाए, बोले बहुत अच्छी मूवी, सब लाइन लगा देंगे उसको। तो यू नीड टू आंसर दीज 4 क्वेश्चन। और आपकी पूरी इनोवेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस में आइडिया के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट की जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसका डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर आप उसको स्केल अप करिए। मैं 2 एग्जांपल छोटे छोटे दे देता हूं, फिर मैं चीजों को समझ करूंगा कैसे डिजाइन थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व है। मुझे याद है बचपन में मेरी माता जी, जब उस समय, जो लोग मेरे एज के आसपास होंगे जानते होंगे, टाटा का नारियल तेल, टाटा का उस समय टॉम को एक कंपनी थी टाटा की, जो बाद में उन्होंने बेच दी हिंदुस्तान लीवर। टाटा का जो नारियल तेल आता था वो टिन कंटेनर में आता, तब ये पैराशूट का नारियल तेल नहीं था उसमें, और उसकी बहुत ही हार्ड टिन सीलिंग हुआ। सो माय मदर यूज्ड टू कट दैट हार्ड सीलिंग विद द नाइफ, चाकू से काटती थी, उसमें उनकी उंगलियां भी कट जाती थी, खून भी आ जाता था। ये बचपन से देखा, मैं, कोई ऑप्शन नहीं था। अब इनोवेशन देखिए कहाँ पे काम, बड़े आज तो आपको बड़ी सामान्य बात लगी, उस जमाने में एक बहुत ही अननोन सी कंपनी मैरिको, अब वो वेल नोन है, अननोन सी इंडस्ट्री मैरिको इंडस्ट्री ने पैराशूट कोकोनट नारियल तेल लॉन्च किया प्लास्टिक कंटेनर में। नारियल तेल वही था, बस उन्होंने कंटेनर को प्लास्टिक। अब देखिए उस प्रॉब्लम को, मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या था, ये जो उंगलियों को हार्म पहुंचाता है उसको हार्म नहीं पहुंचाएगा, आराम से प्लास्टिक कंटेनर खोलिए, अपना नारियल ले ली। बट इनोवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस नहीं। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, पर जाड़े का जब दिन आ गया तो आपको मालूम है कि नारियल के तेल का नेचर होता है वो जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। सो व्हाट दे फाउंड कि अब यार कैसे निकालेंगे, कितना छोटा सा मुंह है, उंगली जा नहीं सकती। सो अमेरिकन इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। फिर उन्होंने क्या किया, चौड़े जार वाला पैकेजिंग चेंज किया, चौड़े जार का उन्होंने पैकेजिंग कर दिया, सेम नारियल तेल यूज किया, प्रॉब्लम सॉल्व। आप जाड़े के दिन में खोल करके आराम से नारियल का तेल निकाल के लगा सकते। फिर जब वापस गर्मी आई तो चौड़े जार वाला में दिक्कत क्या होता है कि जब आप लेंगे नारियल तेल तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो नारियल का तेल आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि आपको चाहिए, मान लीजिए 10 बूंद चाहिए, आ गया 50 बूंद आप। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये पॉसिबल है नहीं कि एक चौड़े जार वाला भी नारियल तेल आप रखिए, एक छोटे मुंह वाला भी नारियल तेल रखिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसी चौड़े जार वाले नारियल तेल के बड़े चौड़े ढक्कन में एक छोटा सा और ढक्कन बना दिया, जो आजकल चल रहा है। अब ये देखिए कि इस पूरे इनोवेशन, दैट वाज अ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, आप पूरा का पूरा देखिए, कहीं नारियल तेल नहीं बदला है, सिर्फ पैकेजिंग में इनोवेट होती चली गई और नंबर 1 ब्रांड हो गया। और एक टाइम ऐसा आ गया कि टाटा को अपना कोकोनट ऑयल बेचना पड़ गया हिंदुस्तान। कौन कहता है कि आप स्टार्टअप लोग बड़ी कंपनियों को नहीं रिप्लेस करते हैं? इससे बड़ा एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि एक छोटी सी कंपनी, अननोन सी कंपनी आके इतने बड़े ब्रांड को रिप्लेस कर सकती। दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा, किसानों के बारे में हमारी ये सोच है कि किसान तो साहब इकोनॉमिकली वीक होता है, तो आइडिया वाइज भी वीक होगा, उसके पास कौन सी आइडिया। ये कभी भी भूल मत करिएगा ऐसा सोचने की। जो लोग गांव से जुड़े हुए जानते हैं इस बात। किर्लोस्कर पंप आपको मालूम है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर पंप इट इज द लीडिंग ब्रांड। किर्लोस्कर के लोग गांव में गए तो गांव, एक किसान, नॉर्मल किसान ने, ये पुरानी बात है, 300 साल पुरानी बात है, वो बहुत ही इनोसेंटली एक क्वेश्चन किया कि साहब रात को 2 बजे, आपको मालूम है यूपी में कुछ समय पहले तो हालत बहुत ही खराब थी, धीरे सुधर रही है, कब बिजली आती है गांव में कोई भरोसा नहीं, कभी रात को 2 बजे आ रही है, कभी 1 बजे आ रही है, कभी कभी आ जा रही है। अब जाड़े का दिन है, मुझे सिंचाई करनी है, तो क्या ये संभव नहीं है कि ये जो आपका पंप है इसमें, इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है, जैसे टीवी चलाया जा सकता है?
अब देखिए कितना इनोसेंट क्वेश्चन था, लोग हंसने लगे, अरे ये कैसे पॉसिबल, बट दैट वाज अ ग्रेट आइडिया। किर्लोस्कर के R&D वालों ने बात को समझा, उन्होंने काम करना, एंड लेटर ऑन they have developed the Kirloskar mobile pump controller through the remote। लेकिन आपको मालूम है रिमोट कंट्रोल के साथ एक डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, तो आपका खेत काफी दूर है, गांव में मालूम होगा आपकी 1 किलोमीटर बाद भी खेत रहता है। अनदर कंपनी, लीडिंग कंपनी, टेक्समो पंप, ये सब आप जो जो देख रहे हैं गूगल पर सर्च करेंगे मिलेगा आपको। टेक्समो ने क्या किया कि जीएसएम बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया, एंड दे हैव क्रिएटेड अ टेक्समो जीएसएम मोबाइल ऑटो पंप कंट्रोलर। अब आपके इवन जो आप स्मार्टफोन है, एक सोल्यूशन के रूप में किया गया। तो यहाँ क्या हुआ, हमने टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी को पकड़ा और ह्यूमन बीइंग की डिजायरेबिलिटी को पकड़ा, उस किसान की जरूरत को समझा, उससे क्या हुआ, डिजाइन और इंटरएक्टिविटी डेवलप, यू डन द डिजाइन, और वो दैट वाज अ वायबल बिजनेस मॉडल। अगर then next shift is to test in the market what market is responding। किसान खुश हो गया, किसान को लगा हाँ यार ये बढ़िया चीज है, ये लेना चाहिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन लेंगे हम इसको, एंड देन फाइनली। तो देखिए कोई भी आइडिया जो होती है वो बेस्ट आइडिया तब होती है व्हेन इट इज एज पर द मार्केट नीड, इट इज कॉस्ट, हैविंग द कॉस्ट बेनिफिट, इट इज हैविंग द टेक्निकल फिजिबिलिटी, वो हमारे स्ट्रेटजी के एंगल से फिट हो, क्योंकि उस पूरे इनोवेटिव इकोसिस्टम में आपकी पीपल, प्रोसेस, पॉलिसी एंड क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड यू नीड टू हैव एन एक्सीलेंट बिजनेस प्लान, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे आर्किटेक्चर प्लान बनता है तो घर बढ़िया बन जाता है, विदाउट आर्किटेक्चर प्लान अगर हम घर बनाएंगे तो स्पेस का मिसयूज करेंगे जो हमें नुकसान करता है। और मैं एक फार्मूला हमेशा देता हूँ, क्योंकि मेरा अपना इंक्यूबेशन सेंटर है, हमारे यहाँ भी हर साल कई बच्चे निकलते हैं अपने स्टार्टअप के साथ, ये आप भी याद रख लीजिए जो बच्चे हैं यहाँ पे जो आगे सोच रहे हैं, थिंक बिग बट स्टार्ट, बड़ा सोचो लेकिन छोटे से शुरू करो, ग्रो ग्रेजुअली एंड ग्रो ग्लोबली। फ्लिपकार्ट ने बड़ा सोचा था लेकिन शुरुआत किससे किया था, किताब बेचने से, ऑनलाइन बुक सेलिंग, और बाद में वो ग्रो ग्रेजुअली उन्होंने फिर अपनी रेंज बढ़ाई, क्योंकि जो रिस्क है उसको मिनिमाइज आप तभी कर सकते हैं जब आप ग्रेजुअली ग्रो करिए। आप बहुत तेजी से एक्सपेंड करेंगे, आपके रिस्क के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड देन ग्रो। यू डू योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस, अपने अंदर मैनेजर स्किल, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स आप पढ़ रहे हैं, सारी की सारी चीजें आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। और समझिए कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा ब्रांड कैसे डेवलप होगा, हम तो अननोन है, लोग हमको जानते नहीं। मैंने आपको मेरे को एग्जाम्पल दिया, इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं। देखिए वो सब ठीक है लेकिन नो, ब्रांड तभी बनता है जब क्वालिटी होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा और इनोवेशन होगा। ब्रांड एक दिन में नहीं बनता लेकिन एक दिन बनता जरूर, याद रखिए, ब्रांड एक दिन में नहीं बनता लेकिन ब्रांड बनता जरूर है, एक दिन जरूर बनेगा ब्रांड आपका, अगर आप इन चीजों का प्रयास करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से चीजें तो बहुत बड़ी हैं और बहुत सी डायमेंशन है इस पे, बट एनीवे thank you very much for giving me this time, and I would be happy to answer the questions of you. So thank you very much, sir. Pandey sir. विशाल पांडे सर, अगर कोई क्वेश्चन हो बच्चों का तो आप प्लीज लेना। क्वेश्चंस रेहान जी, चैट ओपन है।
See, sir has given a very practical thing, and he has brought in few points which are very relevant. In fact, कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज अ फैक्ट. हम लोग को आईना दिखाने वाली बात है कि बड़े बड़े पेटेंट्स की बात करें या बड़ा कुछ बात करें, एक्चुअली में उसका यूज कितना है. वी कैन नॉट फॉरगेट समबडी फ्रॉम इंडस्ट्री. दिस इज द डिफरेंस. एकेडमिक्स में केवल आपने बुक पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, न्यूटन का लॉ. यस्टरडे आई टुक अ लेक्चर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बेसिकली जो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस कि चिड़िया उड़ती है, उसको ना न्यूटन का लॉ मालूम है ना कोई और मालूम. वो सारे शायद मालूम होते तो उड़ भी ना पाती, लेकिन वो उड़ती है. वो हिट एंड ट्रायल is the basis of artificial intelligence. That is what the basis of entire working is. So we are thankful कि आपने बहुत ही relevant चीजें रखी हैं. आप students या staff, in case you have any questions, sir, आप college definitely have told number. What can you advise as a college? हम लोग ने जैसे अलग अलग सेल्स बनाए हैं, टीचर्स को इंचार्ज करा है, स्टूडेंट्स हैं, they are making projects also. What else can we do? Like आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी हो जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हो या समथिंग लाइक दैट? सबसे बड़ी बात है ना कि पहले तो एक वहां पे एक इकोसिस्टम जनरेट करना जरूरी होता है. स्ट्रगल होती है. मैं कभी कभी हंसी मजाक में बोलता हूँ कि मेरा जो सेंटर फॉरेंसिक इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट, इसका मैं चेयरपर्सन हूँ, और मेरे ठीक सामने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है. तो भीड़ भाड़ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि हर कोई नौकरी चाह रहा है. और हमारा थोड़ा समाज ऐसा है कि हम लोग सोशियो और साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस एंटरप्रेन्योर्स को उतना देते नहीं. हमको लगता है कि नौकरी कर लेना ज्यादा अच्छा. तो काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है. और मैं फिर से कह दे रहा हूँ, सभी लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं. उसके लिए इनकी माइंडसेट होते है. तो यू ट्राई टू कंडक्ट एज मच एक्टिविटीज एज यू कैन. जैसे हम लोग, मैं हर साल करवाता हूँ बिजनेस मॉडल कॉन्टेस्ट. अब उसमें बच्चे अपनी आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, और उस आइडिया पे फिर वो कॉन्टेस्ट होता है, और फिर हम एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाते हैं, बैंकर्स होते हैं, इंडस्ट्री के लोग होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, ताकि उनका प्रॉपर इन्वॉल्व होता क्या है कि उस प्रोसेस में. और ये हमने कोई कन्फाइन नहीं किया कि सिर्फ एमबीए वालों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारे यूजी पीजी प्रोग्राम्स चलते हैं, तो कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट मेनी अ टाइम्स आवर यूजी स्टूडेंट्स गॉट द फर्स्ट. तो आइडिया तो किसी के पास भी रहता है. इससे क्या होता है कि एक पहले तो माइंडसेट तैयार होना शुरू होता है. वहीं से फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है कि जो जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो आते हैं. फिर हमारा दूसरा इंक्यूबेशन प्रोग्राम. इंक्यूबेशन कई तरह के होते हैं. टेक्नोलॉजिकल होता है, एग्री इंक्यूबेशन. हमारा बेसिकली बिजनेस इंक्यूबेशन है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो वो हम उनके उस आइडिया पे फिर उनको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, और 3 महीने 4 महीने तक पूरा उनका बिजनेस प्लान प्रिपेयर कराते हैं. और ये फेलोशिप तभी अवार्ड होगी जब वो अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे. ऐसे नहीं कि बस सिर्फ आए और 4 महीना रहे, सर्टिफिकेट लेके चले गए. सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना उद्देश्य नहीं है. आप अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करिए, और जिस दिन वो इंडस्ट्री कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, इनोवेशन हो जाता है, उसके बाद हम उनको बकायदा फंक्शन बुला के सम्मानित करते हैं, उन्हें फेलोशिप हुआ. तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं. बाकी डिटेल में फिर हम लोग, रेहान सर हैं, पर्सनली उनसे डिस्कस कर लूंगा. पांडे सर आपसे बात करूंगा. बहुत सी और भी मॉडलिटीज हैं वो. आई थिंक फ्यू क्वेश्चंस आर आल्सो देयर. अगर आप प्लीज वो भी पुट अप कर लें तो बच्चों को मैं जवाब दे सकता हूँ. चैट बॉक्स में कुछ चैट क्वेश्चंस बॉक्स में सर कुछ क्वेश्चन आए हैं. आप सर, आपको पता है सर, या चैट बॉक्स में सर क्वेश्चन कुछ बच्चों ने दिए हैं. भी इसको मुझे देख. कोई गियर बॉक्स डेवलप करने की बात कर रहा है, तो कोई भूमिका वाचने का क्वेश्चन है, सैनिटरी पैड्स के बारे में कुछ है. अगर आप प्लीज उसको रीड कर सके तो आई कैन आंसर दैट. बच्चे आप अपना माइक्रोफोन क्या उनका सर अलाउ कर देंगे ऑन? हाँ सर, अलाउ कर देंगे. हाँ ठीक है स्टूडेंट, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए सर से. हाँ, वो ज्यादा अच्छा. हेलो. 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 हाँ बोलिए. सर मेरी आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सर नीलेश गुप्ता गुड है। आफ्टरनून। मैं फाइनल ईयर हाँ हाँ, मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ। वेरी सर गुड। मैं इस टाइम वर्क कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, जिसमें कि जैसे कि मैकेनिकल कंपोनेंट जैसे मोटर्स हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा हर इंडस्ट्री में मोटर्स लगी होती है और मैकेनिकल ड्राइव लगी हैं। तो उनमें क्या होता है कि उनमें जब फेलियर आ जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कुछ फेलियर आ गया है। तो मैं यूज कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी का, कि उस मशीन में फेलियर आने के पहले ही हमें पता चल जाए कि वो मोटर इतने % खराब हो चुकी है, आगे आके फेलियर हो सकता है। तो सर अगर मुझे इसे स्टार्टअप बनाना है तो मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ आगे? नहीं, मेरा ये कहना कि क्या आपने कोई प्रोटोटाइप डेवलप किया है इसका? सर इस टाइम प्रोडक्ट पे मैं सर काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट वर्क, ऐसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना हाँ, रहा हूँ तो सर। आप ऐसा है कि इसको एग्जैक्टली प्रोटोटाइप डेवलप करिए पहले, है ना। डेवलप करके फिर भाई देखिए, ऐसा कि अभी जो कंपनियां बना रही हैं गाड़ियां, वो तो इन्वॉल्व अभी कर नहीं रही है इसको। तो आप इसमें थोड़ा सा पर्सनल बेसिस पे कुछ ट्रायल लीजिए, कुछ लोगों के साथ बातचीत करके पर्सनल बेसिस पे, एंड सी वेदर द थिंग्स आर बीइंग प्रॉपर्ली टेस्टेड और नॉट। देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक सेक्टर होता है, इसको ओईएम बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो कि इस टाइप की चीजें जो होती हैं, वो चूंकि आपको मालूम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली एक असेंबलिंग इंडस्ट्री है, जो कई सामान कई जगह से लेकर के असेंबल करती है, एक्सेप्ट फ्यू पार्ट्स जो कि वो खुद बनाते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा आपका सही हो, तो आप पहला तो काम ये करिए कि इमीडिएटली इसको पेटेंट कराइए अपने नाम। उसके बाद फिर आप अप्रोच करना शुरू करिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर ये आपका वायबल मॉडल है, प्रोटोटाइप सही है, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट सही है, कितने % की सक्सेस रेट है, वो सारा कुछ डेटा लेके जब आप किसी कंपनी से बात करेंगे, तो उसकी फिजिबिलिटी बताने पे, इफ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन यू, फिर आपका काम बन जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको प्रोडक्शन करना, उन्हें सप्लाई करना, ठीक है। थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट एनी अदर क्वेश्चन फैकल्टीज में बेटा, कोई किसी और को हो? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Good afternoon, ये sir. किसी, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, यस प्लीज। Good afternoon, sir. Sir, I am the student of BTech first year from VIT Aligarh. हाँ हाँ, My question is that sanitary napkins are the most commonly used things in India, and most of the हाँ sanitary pads are non-biodegradable, so that they can take of about 300 to 600 years for their decomposition. So, is there any way that it can harm the nature also? So that is there any case or any way that these can't harm the nature, or the sanitary napkins which are biodegradable, they are very expensive, so that it can't be affordable by everyone, or any other option that can take in place of sanitary napkins, so that this can be safe for our environment as well as health? नहीं, ये कॉन्सेप्चुअली तो सही बात है कि ऐसी चीजों को अवॉइड करना होगा जो कि बायोडिग्रेडेबल ना हो, और ये एक R&D का विषय है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विषय है कि क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं। इस टेक्निकल पार्ट मुझे बहुत ज्यादा इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ इस पे काम होना चाहिए। और कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट कोई बड़ा इशू नहीं है। जब कोई चीज वॉल्यूम पे जाती है तो कॉस्ट इधर मिनिमाइज होती चली जाती है। और अगर, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल एक दिया था ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, कि हम सभी जानते हैं कि भाई हमारी जो नॉर्मल चीजें हम खा रहे हैं उसमें नुकसान होता है, तो इवन वो थोड़ा हायर प्राइस पे भी होता है तो लोग ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यूज करते हैं, थोड़ा हाई प्राइस दे के। तो अगर ये चीज साइंटिफिकली प्रूव कर दी जाए कि ये जो भी चीजें ऐसी यूज हो रही हैं सिंथेटिक चीजें, इससे हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि 3 से 4 या 5 दिन तक उसको यूज करना पड़ता है लेडीजों को, तो वो उनको हार्म कर रहा है, उनके पर्सनैलिटी के एंगल से भी, उनके बॉडी के एंगल से भी। तो अगर वो इस तरह का ऑर्गेनिकली और या किसी और चीज से डेवलप किया जा सके, जिससे उनको कोई सिंथेटिक इन्वॉल्वमेंट ना हो, उनके शरीर के लिए भी नुकसानदेह ना हो, तो कॉस्ट इज नॉट द इशू। आप थोड़ा सा प्रीमियम भी चार्ज करेंगे, लोग पे करने के लिए तैयार है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप आपकी कॉस्ट डाउन हो जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक बेनिफिट मिलता है। बट सो फार एज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर कंसर्न, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। वो जो हमारे इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं वो ज्यादा उसको टेक्निकली ज्यादा बता पाएंगे कि पॉसिबल कुछ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है दुनिया में। बस उस पर R&D करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, और उसका प्रोटोटाइप डेवलप करने की जरूरत है। फिर उसको, जैसे मैंने कहा, तरीका वही है, फिर टेस्ट करिए, रिजल्ट अच्छे हैं, देन फिर उसके कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है।
और किसी को नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहे हैं? Thank you, sir. अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं अगर एनी मोर क्वेश्चन प्लीज, अगर हो तो अनम्यूट करके पूछ लें आप। मैं अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं उसमें ऐड कर दूं कि 3R का प्रिंसिपल होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो इस तरह के 3Rs पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट भी बने जिसमें हम सिंथेटिक एलिमेंट को रिड्यूस कर सकें, वॉशेबल हो, चाहे हम रीयूज कर सकें उसको ताकि कम से कम वो नुकसान पहुंचाए, और उसे हम रिसाइकिल। ये भी एक तरीका हो सकता है कि इवन अगर वो सिंथेटिक भी है तो कम से कम ज्यादा वो नुकसान न करे हमारे environment। ये भी एक तरीका मॉडल। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, अगर हो तो आप पूछ लें। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। सर यस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपने मैक्सिमम चीजें आपने कवर कर दी थी लेक्चर में ही, तो और क्वेश्चन मुझे लग रहा है नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जी आई एम रेडी टू हेल्प एवरी स्टूडेंट। कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो ऐसा नहीं कि मेरा इंक्यूबेशन सेंटर में एसएमएस का ही स्टूडेंट होना चाहिए, कहीं का भी स्टूडेंट हो, वो देश के लिए काम। आई एम ऑलवेज रेडी, डोंट वरी। जी मैम, आपको वॉइस आ रही है? Yes, sir, yes. ठीक है, ओवर कर दीजिए। Am I audible? यस यस। So, okay, on behalf of hello, sir, Alish, this side. So, on behalf of Vision Group of Institution, I would like to sincerely thank you for giving your precious time and enlightening our students. And this session was really, really grateful for our students. I hope they have learned a lot from you. And all the things that you have mentioned in this session was very useful for them. And I hope they will use these things and will, start a new startup and will definitely contact you if they have any needs with you. Thank you so much, sir, for giving your precious time. Thank you for inviting me over here. थैंक यू सर। Have a good day, everyone. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you.